what was that moment when you decided to study abroad? मेन स्ट्रीम आईटी ये सारी चीजें मेरे को बहुत प्रेशर दे रही थी एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं बहुत एक्साइटेड था बाहर जाने के लिए क्योंकि मेरे को लगा मेरे को इंडिपेंडेंस मिलेगी और आई डिडंट जस्ट इमेजिन कि वो आएंगे। वर थिंग्स लाइक कि भाई मनी मैनेजमेंट हो गया। Market has always been highly competitive. So, what is your take on this? 5 साल आप क्या करना चाहते हो उसको आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, अगले 1 साल में आप क्या कर सकते हो वो आप बहुत ग्रोसली ओवर एस्टिमेट करते हो। हाउ टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इट्स नॉट जस्ट यू हु वांट्स अ जॉब। जब इंटरव्यूअर को भी जॉब दे हार्ड टाइम्स में, इफ यू एम्ब्रेस द पेन and you pick yourself up out of the things that are not in your control, that is the by very definition makes you an evolved person. Try not to trade, try to invest in your life. Hello, everyone. Welcome back to the second episode of Shabd's podcast, which is focused on everyday heroes, wherein what we try to do is bring out the journey of everyone every day and how their journey itself is very unique. Because every time we listen to a celebrity, we feel, wow, what a great journey. But we, everyone today, are heroes in our own life. So today we have with us a very special guest all the way from Canada. We have my dear friend Hardik Hajela, who is currently, a technical business analyst at TD Bank in Canada, and he's also an educator in data and AI. So since Indore times, we have seen each other grow and go in their careers. So today we want to know about the journey of Hardik and how he, started from Indore and how he made all his way into the sector that he's currently working. So welcome Hardik to the podcast. We are really excited to have you. Namaste everyone. Thank you so much for having me here, Akshat bhai. So I'm very excited to be here. जैसे अक्षत ने mention किया, it's been long since we've known each other. I think when I was in my seventh grade, Akshat and I, went to a summer camp together, and we lived together for about 15 days with 10 other people, and that's sort of the bond that we share together. I'll start with a little bit about myself. So, my name is Hardik. I am originally from Indore, India. Even though I was born in Indore, I spent about first 20% of my life in Dubai because my dad went there for a project. And then उसके बाद हम लोग वापस गुजरात आए, जहाँ I spent another 6-7 years of my life. Then we came to Indore, and इस बीच में मेरा दिल्ली, मुंबई, देहरादून ये 3 जगह आना जाना बहुत लगा रहता था. And then after Indore, when I did my high school, I finally came here to Canada. I pursued a bachelor's, like an honors in computer science and mathematics from University of Windsor. And Uske baad, through and through, I've worked for startups here and there. I also supported myself, like, kuch nahi to selling credit cards as an international student. And finally, when I graduated, I started working at the intersection of, I would say, I'm good at communication and I have a good background in technology. Merged the two and became business analyst. So that's a little bit about me. Right. So I think that's a great intro, Hardik, and you perfectly summed up your entire journey. So now, we will start by step key when you started, starting your professional career and all. So what was that moment when you decided to study abroad? Maybe class 12th के बाद सब लोग अपना अपना, path decide करते हैं. So what was your mindset while going through it? How was the family reaction? Because obviously जैसे बोलते भी हैं कि एक बार कोई फॉरेन चले गया, अब्रॉड चले गया तो फिर वो वापस काफी रेयरली आ पाता है. So, how was their reaction, and what was, biggest concern about leaving India? So, like a coin, there are two aspects of everything. I would say everything is a spectrum, and there was excitement and there was fear. So, इस spectrum के बीच में मेरी और मेरी family की feelings कहीं ना कहीं vary कर रही थी. टू स्टार्ट विथ 6 से मॉम डैड का कहीं से कहीं ना कहीं हो गया था कि मेरा बेटा आईआईटी जाएगा. Hmm. एंड उन्होंने कोचिंग एंड ऑल लगवा दी थी, सब कुछ कर दिया था. बट जब तक मैं 11th में आया तब तक आई सॉर्ट ऑफ रिबेल्ड अगेंस्ट इट कि मुझसे कोचिंग तो नहीं हो पाएगा एंड मुझसे मेन स्ट्रीम या आईआईटी भी नहीं हो पाएगा. बिकॉज इन इंडिया और इन जनरल, लाइक इन आवर साउथ एशियन कल्चर, हम कहीं ना कहीं कंफर्मिज्म बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. यू कैंट बी क्यूरियस एंड यू कैंट आस्क स्टफ दैट यू आर नॉट सपोज टू आस्क, राइट. बट बिकॉज स्टार्टिंग से मैं कहीं ना कहीं एक क्यूरियस पर्सन रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी लगती है, पजल्स करना कुछ नहीं, तो राइट. तो कहीं ना कहीं मेरे को एक फिट नहीं बैठ रहा था वो से. एंड प्लस मेन स्ट्रीम आईआईटी ये सारी चीजें मेरे को बहुत प्रेशर दे रही थी एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो आई प्रपोज टू माई मॉम एंड डैड कि भाई हम लोग क्या ऑल्टरनेट पाथ्स ढूंढ सकते हैं. Hmm. सो माई डैड इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर and my mom is much more on the emotional spectrum, and I think it's the intersection of them that I'm on. तो माई डैड बीइंग अ वेरी ऑब्जेक्टिव पर्सन, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक लैडर बनाते हैं, ठीक है. सबसे नीचे लैडर के आएगा तुम्हारा, जस्ट
नॉर्मल कॉलेजेस, एनएमआईएमएस और सिम्बोयसिस और ये सब, जिसमें तुम्हारा कंपैरेटिवली आसानी से हो सकता है। फिर आ गया तुम्हारा बिट्स, जिसमें थोड़ा कंपटीशन है, एंड देन आईआईटी, राइट। उसके बाद हम थोड़ा बाहर जाते हैं, दुबई में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो बिट्स दुबई और वहाँ की कुछ स्कूल्स ट्राई करो, एंड उसके ऊपर हायरार्की में तुम्हें एकदम ही दूर भेज देंगे, कनाडा, यूएस, वो वाली जगह ट्राई करो। एंड तब तक आई एस्टैब्लिश कि आई लव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बट कोडिंग इज वन वे दैट आई कैन सॉल्व रियली गुड प्रॉब्लम्स। तो मेरे को कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, इस साइड ही जाना था। एंड जब मैंने वो हायरार्की बनाई, आई अप्लाइड एवरीवेयर, गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, गॉट इनटू अ लॉट ऑफ स्कूल्स, बिट्स दुबई से लेके एनएमआईएमएस तक सब जगह हो गया था। बट इन माय कोर मेरा यही चल रहा था कि मेरे को बाहर जाना है एंड ऑल। एंड यू माइट नो, लाइक अक्षत पर्सनली नोज दिस पर्सन, हर नेम इज मीनल, राइट। वो दीदी हमारे साथ स्टार्टिंग से रही है, एंड वो 1 साल सीनियर है मुझसे, एंड वो कनाडा गई थी। तो मेरा खुद भी कनाडा बहुत जाने का मन था, बिकॉज मेरी मतलब मीनल दी की मॉम की एंड मेरी मॉम की बात हुई थी, एंड उनसे मेरे को एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिला था तब जानने का कि कनाडा में क्या चीजें चल रही है एंड ऑल। तो कनाडा वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑन द अदर साइड मेरे मॉम डैड की प्रायोरिटी सिंपल थी, मेरा बेटा आईटी जाएगा। सो फाइनली मैंने मेंस दे दिया, मेंस क्लियर हो गया। उस मेंस के बेसिस पे मेरे को यूएस कनाडा में स्कॉलरशिप्स भी मिल गए। बट अब एडवांस की बारी आई, एंड मम्मा पापा की वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। सो मैंने क्या किया, मैंने उनके सामने एक अल्टीमेटम रख दिया कि आप लोग अभी डिसाइड कर लो एंड मेक पीस विद इट, या तो मैं बाहर जाऊंगा या तो मैं इंडिया में रहूंगा, बट इन एनी केस आई डोंट थिंक आई वांट टू बी इन द प्रेशर टू क्रैक आईआईटी, राइट। इफ आई फील सिक्योर्ड आई माइट, बट इफ आई एम इन कांस्टेंट फियर कि आई विल फेल इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स इफ आई डोंट डू आईआईटी, आई वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग एट ऑल। तो तब उन्होंने, मतलब मेरी मॉम ने भी मतलब ऐसे इमोशनल होकर बोल दिया, बेटा तू आईटी की चिंता मत कर। डैड ने भी कह दिया कि ठीक है, टेंशन मत लो, एज लॉन्ग एज वी हैव गुड स्कूल्स, लाइक अगेन एट दैट टाइम मेरे को ऑलरेडी बिट्स और ये सब जगह से ऑफर आ चुके थे। तो उन्होंने कहा तू टेंशन मत ले। एट द एंड आई वाज स्टिल वेरी स्कैर्ड, सो आई coincided my IELTS का date, which is an English proficiency test for going out abroad, right, with the advanced वाला date. So I chose, gave IELTS, and I skipped advanced in its entirety. एंड उस तरीके से कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन हुआ। आई गॉट a couple of offers from many universities like यूएसए एंड कनाडा से। यूएस में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, तब थोड़ा ट्रम्प का भी ऐसा टाइम चल रहा था एंड ऑल, द फर्स्ट प्रेसिडेंसी। तो फाइनली वी डिसाइडेड अपॉन कनाडा। एंड जाने के पहले माय पेरेंट्स वर नॉट रियली विलिंग टू लेट मी गो। डैड कितने भी ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, है तो पेरेंट ही ना एट द एंड ऑफ द डे। Right. मॉम तो बिल्कुल ही रेडी नहीं थी। शी वाज लाइक, इसको इतना 12,000 मील दूर भेज रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं है, राइट। तो मेरे अंदर बहुत अलग टाइप के फियर्स थे। मैं बहुत एक्साइटेड था बाहर जाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगा मेरे को इंडिपेंडेंस मिलेगी, मैं क्वेश्चंस पूछ पाऊंगा, मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा ऐसे बाहर जाके एंड ऑल। बट द एस्पेक्ट्स दैट आई डिडंट लुक फॉरवर्ड टू, और आई डिडंट जस्ट इमेजिन कि वो आएंगे, वर थिंग्स लाइक कि भाई मनी मैनेजमेंट हो गया, राइट, खुद खाना बनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। मेरे को बहुत छोटे छोटे फियर्स थे कि यार मेरा रूममेट नॉन इंडियन निकला तो क्या होगा, राइट, मेरे को वहां पे वेज खाना नहीं मिला तो क्या होगा, राइट। लाइक छोटी छोटी ऐसी चीजें जो धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हो रही थी। फाइनली मैं कनाडा पहुंचा, मॉम डैड आए छोड़ने, एंड डैड को स्टिल कहीं ना कहीं था, ही हैड हिज रिजर्वेशंस कि हम लोग अब कनाडा आ गए, बट ही स्टिल हैड हिज रिजर्वेशंस कि यार ये कनाडा सही चॉइस थी कि नहीं थी, राइट। एंड उनके दिमाग में हमेशा से इंजीनियर चलता आया था कि हम, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। द डिग्री वाज ऑफ ऑनर्स इन साइंस, नॉट ऑफ ऑनर्स इन इंजीनियरिंग और समथिंग। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें थी जो उनको बक करी थी। फाइनली माय फर्स्ट डे हॉस्टल में मैं गया, हॉस्टल करवाया था फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड आई गॉट अ चाइनीज रूममेट। एंड फर्स्ट डे पे उसको लग रहा था कि क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था तो मैं लेट था आने में, उसको लग रहा था ही हैज हिज रूम टू हिमसेल्फ, तो उसने अपने साइड तो बढ़िया जमा के रखा था। मेरे साइड केएफसी के 3-4 डब्बे रखे हुए थे। तो दैट वाज माय फर्स्ट विजन व्हेन आई वेंट इनसाइड माय रूम, कि मैं अपने टेबल पे 3-4 केएफसी के डब्बे देख रहा हूँ, एंड 3-4 बढ़िया चाइनीज लोग हैं जो पबजी खेल रहे हैं। एंड फाइनली सब हमने एडजस्ट किया, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। एंड जिस रात मैं एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिया आने वाला था, राइट, तब लाइक मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी निकल चुके थे, मेरा वीजा आना लेट हो गया था, तो एक दिन लेट गई थी मेरी फ्लाइट। तब मेरे डैड को जो रेजर्वेशंस थे वो धीरे धीरे करके कम हो रहे थे। बट फाइनली मैं, मेरे एक मामा है, वो मामा जी हैं, वो आईएएस है, मैं उनके यहाँ रुका था तब दिल्ली में। एंड उन्होंने कहा कि हम हार्दिक को छोड़ने एयरपोर्ट आ रहे हैं। मेरे डैड के लिए बहुत बड़ी डील थी वो, कि मतलब
आईएएस लेवल पे हमारे मामा मतलब ऐसे करने आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों। तो मेरे मामा जी ने कहा कि आप एक चीज समझिए, हार्दिक पहला बच्चा है हमारे पूरे घर से, राइट, एक्सटेंडेड फैमिली से भी, जो बाहर बैचलर्स करने जा रहा है। तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे घर के लिए। एंड आई थिंक दैट्स द टाइम व्हेन माय डैड ऑल्सो रियलाइज, एंड मॉम एंड ऑलमोस्ट एवरीवन, कि इट वाज अ गुड डिसीजन। सो या। Right. So I think this was a very great point कि काफी time in life, we get a lot of questions because कुछ नया pathway होता है या basically something which is we are not sure of कि how it will turn out. So this is very important in general to take a leap of faith, and a net will appear for sure. So that's really nice to know, Hardik. So one thing that you rightly said कि जो भी movies or even social media में बताते हैं, that staying abroad is like a dream come true, and you get independent life and everything, etc. But there is obviously tough challenges, like you said, managing expenses and other challenges as well. So what is your take on this particular thing, and dreams versus reality वाला जो expectation एक hit होता है, तो how you dealt with that? सो दिस इज लिटिल यूनिक टू कनाडा। जब आप कनाडा आते हैं तो फर्स्ट ईयर एक्सपेंसेस दे नीड टू बी स्टोर्ड इन अ बैंक अकाउंट इन अंडर माय नेम। एंड आई थैंक गॉड, बिकॉज आई एम इन अ वेरी वेरी प्रिविलेज पोजिशन जहाँ पे my mom dad could afford a part of my fees. A part of it was taken in loan, and for at least the first year they managed or helped me manage all my expenses, rent और सब कुछ, right? हाउएवर मेरे फर्स्ट ईयर के कुछ टाइम बाद कोविड आ गया था। कोविड में मैं इंडिया आ गया था। जब मैं वापस गया कोविड से, तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था लाइफ को लेके, बिकॉज आई हैड स्पेंट एटलीस्ट 1 ईयर इन कनाडा एंड देन आई स्पेंट ईयर इन इंडिया। तो वो पूरा फेस शिफ्ट हो गया, बिकॉज वन टाइम आई वाज इंडिपेंडेंट, जहाँ पे आई वाज नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट बिकॉज माई मॉम एंड डैड वर फंडिंग मी, राइट। एंड देन आई केम टू इंडिया, जहाँ आई वाज होली डिपेंडेंट। मतलब घर से बाहर निकलने से पहले पूछा जाता था कहाँ जा रहे हो एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। नॉट दैट आई माइंड दोस क्वेश्चंस, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट आई डिडंट गेट यूज्ड टू इन दैट फर्स्ट ईयर, राइट। कनाडा में मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। लाइक इवन नाउ आई स्पीक विद अ वेरी फेक एक्सेंट व्हेनेवर आई टॉक विद पीपल। इट जस्ट कम्स नेचुरली, आई कांट हेल्प इट। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इट्स नॉर्मल इंग्लिश, राइट। बट इफ आई वर टू टॉक टू कैनेडियन वुड कम मोर लाइक दिस, राइट। तो वो पूरा फेस शिफ्ट के बाद जब आई केम बैक टू कनाडा आफ्टर कोविड, द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन टन्स ऑफ जॉब्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स। एंड पहले भी मैं जॉब्स में अप्लाई कर रहा था, बट देयर वाज अ वेरी स्मॉल स्ट्रगल बिकॉज आई वाज फंडेड फॉर। जब मैंने पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मेरी एक जगह जॉब लग भी गई थी प्री कोविड, बट आई गॉट लेड ऑफ बिकॉज ऑफ कोविड। मैंने वहीं पे वापस कहा कि आप प्लीज ले लो, मैं आपके मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इवन थ्रू ट्रेनिंग। उन्होंने ले लिया। एंड इट वाज सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स बेसिकली। मॉल में वो लोग नहीं आते जो आपको बक करते हैं, सर वुड यू लाइक अ क्रेडिट कार्ड, राइट। एंड मैंने डे वन से प्रण लिया था कि मैं कभी भी मिनिमम वेज पे काम नहीं करूंगा, राइट। आई डोंट नो इफ इट वाज माय ईगो और if it was my righteous behavior or something like that, but I chose a sales job because it was not minimum wage, उस पे कमीशन मिलता है, राइट। इवन व्हेन यू डोंट डू सेल्स, अगर आप अपना मिनिमम कोटा वो कर लो तो यू गेट लाइक पेड मोर देन मिनिमम वेज। सो मैं 2 महीने बाद वहाँ टीम लीड बन गया, सब कुछ हो गया। बट इन दोस 3 इयर्स, राइट, जब मेरी डिग्री को भी थोड़ा टाइम बचा था, एंड while I was a student, just being independent and just being independent with a job, ये तीनों आई थिंक अलग अलग फेजेस है लाइफ के। सोशल मीडिया पे तो लोग अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, अब कुछ रियलिस्टिक कंटेंट आने लग गए हैं जो अच्छी चीज है। बट आई थिंक देर आर सम थिंग्स दैट कैन जस्ट बी एक्सपीरियंस एंड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, राइट। जब आपको यहाँ पे वेज पिज्जा का ऑर्डर देना होता है और जब आपके साथ दोस्त होते हैं, तो मेरे दोस्त को मैंने एक बार बोला कि आप मेरे लिए भी पिज्जा ऑर्डर कर दो एंड डोंट डू चिकन और एनीथिंग प्लीज, आई डोंट दैट, राइट। आप बढ़िया प्याज टमाटर कुछ भी डलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उन्होंने यहाँ पे हाफ एंड हाफ पिज्जा ऑर्डर कर दिया, जिसमें हाफ पिज्जा पे चिकन आया था ना, हाफ पे वेज आया था। नाउ ऑब्वियसली देयर people in the spectrum की जो ग्रेवी खा लेंगे बट चिकन नहीं खाएंगे। आई बिलोंग टू द साइड वेयर आई कांट ईट फ्रॉम दैट वेसल इटसेल्फ, राइट। तो उसमें मैंने डॉलर्स में पे भी कर दिया पिज्जा के लिए, एंड देन आई कुडंट ईट दैट पिज्जा एज वेल। आई डोंट थिंक कि वी कैन फैथम कि उस टाइम पे जब इंसान को भूख लग रही होती है और उसके पास कुछ नहीं होता ना खाने के लिए, और तब जब उसको वो खाने के लिए पे करना पड़ता है, जब वो खा भी नहीं पाता, तो उसको कितना पेन होता है, राइट। आई डोंट थिंक वी कैन फैथम द फैक्ट कि इफ यू कम टू अ प्लेस लाइक यूएस, नॉर्दर्न यूएस, और जस्ट इन कनाडा, एंड आप अपनी शिफ्ट के लिए जा रहे हो, आपको 1.5 घंटा लग रहा है सिर्फ वन साइड जाने के लिए, एंड आप जब बस के लिए 10 मिनट वेट करते हो और आपके पास कान की कवरिंग नहीं रहती है और बाहर स्नो हो रही होती है, आपके कान का जो नीचे का पार्ट है ना वो जमने लग जाता है बर्फ में। I don't think people can really fathom.
those things until unless they come and experience here. And उन सब के बाद भी जो है ना, I think the biggest thing you have to understand is it needs to be motivation at play. आप कमा रहे हो तो आप क्यों कमा रहे हो, आप करियर यहाँ बनाना चाह रहे हो तो क्यों बनाना चाह रहे हो? बिकॉज सिर्फ ये सोच के चलना कि हमें यहाँ बेटर लाइफ मिल रही है, वो तो नहीं मिलेगी. You have to consistently work through and through to build that life. Honestly, इंडिया में बहुत अच्छी लाइफ है, यहाँ बहुत अच्छी लाइफ है, राइट? बट द ओनली डिफरेंस इज, इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी. अगर दिन में मैं इंडिया में 20 रुपए बचा पाता हूँ तो उससे मैं एक समोसा ले सकता हूँ. बट यहाँ पे अगर मैं दिन में आसानी से $20 बचा पाता हूँ तो इंडिया के लिए वो 1,000 रुपए हो सकता है, राइट? वो 1,000 रुपए को आप मिला लो 30 दिन के अक्रॉस, तो 30,000 इज अ सैलरी फॉर अ पर्सन इन इंडिया, राइट? तो जितना आप बचाते हो ना अपने खर्चों के बाद, वो थोड़ा बच सकता है. बट यू शुड नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अ पर्सन हु इज अर्निंग इन करोड्स हियर, बिकॉज वो करोड़ों का खर्चा भी कर रहा है, राइट? सो दैट्स माय टेक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. मतलब, या. Right. So I think this is a very important message. At times, like even if I am listening, so I might think यार ये तो मतलब ठीक है, this is a very small problem कि ठीक है पिज्जा आपने को नहीं मिला या maybe we forgot the winter cap and all. But once you start living in those circumstances, only you can feel कि जो छोटी छोटे issues हैं they are not that small, and obviously you need to deal with them as well. So similar is the question with respect to the job scenario also. The market has always been highly competitive. So, what is your take on this particular scenario and how you dealt with it? Because obviously, you might have, been in through phases which आपको पसंद नहीं आ रहा होगा कोई पर्टिकुलर जॉब, बट आपको वहां स्टे करना पड़ रहा होगा जस्ट बिकॉज यू कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा. तो व्हाट वाज दैट सिनेरियो, एंड मेनी पीपल फेस थ्रू दिस प्रॉब्लम इवन हियर इन इंडिया और वेयर एवर दे गो. सो व्हाट इज योर टेक अवे मैसेज कि आपने वो फेस कैसे निकाला? सो 2023 तक मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था वर्किंग पार्ट टाइम एंड एवरीथिंग, राइट? जैसा मैंने बताया कि 2 मंथ्स ऑफ सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स, आई वाज अ टीम लीड ऑफ सेल्स, तो मेरा सेल्स वाला पार्ट कम हो गया था एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट ज्यादा हो गया था. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस विद एवरीवन. अभी मैं स्टार्ट पार्ट टाइम जॉब्स पे कर रहा हूँ, बट जस्ट टू मूव थ्रू द कॉर्पोरेट हायरार्की और डू समथिंग लाइक दैट, इट टेक्स years फॉर पीपल टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट कि आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई हैव टू स्विच, या फिर आई वांट टू ग्रो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट स्विच डजंट वेरी इजीली हैपन. जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश दैट. फुल टाइम जॉब्स की जहां तक बात करें, लाइक करियर की जहां तक बात करें, मेरा करियर का स्टार्ट जो है ना, अगेन आई वाज प्रिविलेज्ड इन द सेंस कि बिकॉज आई हैव हैड वर्क विद स्टार्टअप्स टिल दैट टाइम, तो मैंने बहुत सारी टेक के अंदर ही फील्ड्स एक्सप्लोर कर ली थी. एंड मैं एक चीज समझ गया था कि आई एम गुड एट कोडिंग, राइट? बीइंग टीम लीड ऑफ सेल्स, आई आल्सो अंडरस्टूड दैट आई एम समवॉट गुड एट कम्युनिकेशन. जैसे मैंने आपको वेरी फर्स्ट टाइम बताया, merged the two and I became a business analyst, which is 60% communication, I would say 30% data and 10% testing. तो 40% technical, 60% बस लोगों से बात करनी है and you have to get this stuff done, right? होता क्या है, जब आप करियर में आगे जाना चाहते हो, लेट्स से यू आर अ स्टूडेंट, राइट? या आप अर्ली करियर्स में हो, 1 और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप सोचते हो कि मैं आगे जाके करना क्या चाहता हूँ. 5 साल आप क्या करना चाहते हो उसको आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, and अगले 1 साल में आप क्या कर सकते हो वो आप बहुत ग्रोसली ओवर एस्टिमेट करते हो, राइट? मेरे टाइम पे, मेरे ग्रेजुएशन के 5 महीने पहले मैंने सोच लिया था कि ये ले ऑफ सीजन चल रहा है, बिकॉज 2022 एंड 2023 वर पीक ले ऑफ सीजन टेक में ही. एंड आई अंडरस्टूड कि इसमें मैं तो कुछ स्कोर नहीं कर पाऊंगा इफ आई डोंट स्टार्ट राइट अवे. तो आई स्टार्टेड राइट अवे, मैंने हर टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई किया. बट जब डेव जॉब्स के लिए अप्लाई करता था ना, तो डेवलपमेंट लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या क्वालिटी एनालिस्ट ये वाली जॉब्स के लिए, तो अंदर ही अंदर एक डर बैठता था कि आई एम गुड एट कोडिंग, बट विल आई बी गुड इनफ हियर? तो मेरे को इम्पोस्टर सिंड्रोम जॉब में जाने से पहले आ गया था, राइट? But as I was exploring jobs, I am again privileged to have brothers and many friends in tech itself, जिनसे मैंने बात की कि वो क्या करते हैं, right? So I technically did a small survey of over 12 types of career in tech, right? And उसमें से I saw कि project management, product management, business analysis, ये 3 चीजें जहाँ मैं सबसे ज्यादा अपने आप को अलाइन कर सकता हूँ, राइट? जो 2 लोग मतलब बिल्कुल हैराकी के टॉप पे थे, लाइक फॉर मी, one is a product manager and one is like a technical BA turned project manager. So exactly that arena. Believe it or not, the second bhai is actually the son of IAS mama. Okay. राइट? तो वेरी क्लोज रिलेशंस. इन लोगों से मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ली. इन लोगों ने थ्रू एंड थ्रू 2-2 3-3 दिन तक बैठ के मेरे को कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए. बिकॉज कंप्यूटर साइंस की या कोई भी डिग्री जो है ना, बिजनेस की हो, डॉक्टरेट की हो, राइट, लाइक मेडिकल डॉक्टर की, ये सारी चीजें आपको बेसिक पढ़ाती हैं.
इसका रियल लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, बिकॉज देयर इज थ्योरी एंड देयर इज एप्लीकेशन, राइट? एक होता है कि मेडिसिन में आपने पढ़ा कि ये सिम्टम्स ये चीज कॉज करते हैं, तो वो सिम्टम्स 10 और बीमारियों के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। बट जब आपको एक इनएफेक्टिव कम्युनिकेटर पेशेंट बता रहा हो ना कि मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तब वो गेस गेम खेलना कि इसको क्या चीज हो सकती है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग अबाउट इट। इट्स द सेम थिंग विद टेक। एंड इतने ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन हो जाते हैं ना, लाइक मेडिकल फील्ड में ही देख ले तो किन्सियोलॉजी से लेके कार्डियोलॉजी से लेके यू कैन जस्ट बी अ फिजियोथेरेपिस्ट। इतनी सारी निशेस टेक में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, हर चीज में, स्पेशली आर्ट्स में तो और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती है ये चीजें। माय ब्रदर सैट विद मी, 2-3 दिन उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें पढ़ाई, उन्होंने मेरे साथ रेज्यूमे पे काम किया, सब कुछ किया। थ्रू 8 months of cycle, right? I applied in over 15,000 jobs, out of which I got less than 3 interviews where I went into the second round, right? 15,000 जॉब्स के अक्रॉस जब आपको 3 इंटरव्यू मिलता है ना, तो वो 3 इंटरव्यू की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। सो आई गॉट ओवर प्रिपेयर्ड, आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचा था कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को करियर बनाना है, राइट? बट when I failed the first 2 interviews, talked with my best friend. My best friend, by the way, huge shout out to him. His name is Luis. He is a pilot and right now studying business from Ivy School of Business, which is one of the biggest in Canada. उस बंदे ने मेरे को एक चीज बताया कि he read a book called How to Win Friends and Influence People, जिसमें वन ऑफ द बेसिक लर्निंग्स इज हाउ टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इट्स नॉट जस्ट यू हु वांट्स अ जॉब, इंटरव्यूअर को भी जॉब देना है, एंड ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट पोटेंशियल कैंडिडेट हु कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन देयर लाइफ। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉयर को एक आसान एम्प्लॉय मिल गया ना हु कैन जस्ट गेट द वर्क डन, दैट्स द बेयर मिनिमम दैट दे नीड एंड दे विल हायर यू। जब मैं थर्ड इंटरव्यू में गया ना, मैं अपने आप को ये समझा के नहीं गया कि मेरे को एक करियर चाहिए या मेरे को अपनी जॉब चाहिए, पहली फुल टाइम जॉब। मैं अपने आप को ये समझा के गया कि मैं सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, राइट? तो जब आप उस अप्रोच से वो इंटरव्यू दे रहे हो, गारंटीड है सक्सेस, क्योंकि तब आप सामने वाले की केयर करते हो और तब आप सोचते हो कि मैं इस चीज को कैसे सामने वाले के लिए यूज कर सकता हूँ ताकि हम म्यूचुअली बेनिफिट करें, नॉट दैट जस्ट सामने वाला करे, नॉट दैट जस्ट हम करें, राइट? ऑल्सो पीपल लाइक हम्बल पीपल, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। लास्टली लेट्स से आई सब कुछ हो गया, राइट? इसके बाद दो और फेसेस हैं। वन इज कि आपको ऑफर आ गया हाथ में, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इज दिस एक्चुअली द जॉब यू वांट टू डू और नॉट। I applied for a business analyst position, but that position was actually much more towards project management. मैं टेक वाला बंदा हूँ, क्या मेरे को प्योरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड जाना है कि नहीं जाना है? अगेन दोस क्वेश्चन स्टार्ट किकिंग इन। आई वुड से स्वॉट एनालिसिस करो, बहुत बोरिंग चीज है पर हेल्प करता है, राइट? आई वुड से डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाओ, बहुत बेसिक चीज है बट हेल्प करता है, राइटिंग हेल्प्स, राइट? जब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की बात आई ना, तो मैंने सोच लिया था, आई वॉज सिक्योर्ड इनफ कि मेरे को ये जॉब चाहिए। आई डिडंट डाउट माई सेल्फ। Very important when you are playing a game, very important that you show a poker face, you are secure within yourself. And उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस जो है ना पार्ट टाइम है, स्टार्टअप्स में इंडिया में है, तो हम लोग तुम्हें बिल्कुल बेसिक सैलरी पैकेज देंगे जो एक स्टार्टर का होता है, व्हेन द पोजीशन एक्चुअली रिक्वायर्ड 3 years of experience. इन दैट इंटरव्यू इटसेल्फ मैंने एक चीज पूछी उनसे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर एवरीवन आउट देयर, प्लीज बी सिक्योर विद इन योरसेल्फ एंड रिफ्लेक्ट इट द बेस्ट वे यू कैन। मैंने पूछा सर से कि सर आप मेरे को एक चीज बताइए, कैन यू अंडरस्टैंड मी? उनको क्वेश्चन समझ नहीं आया एंड इट वाज इंटेंशनली एम्बिगुअस। उन्होंने कहा या आई एम एबल टू हियर यू। मैंने कहा सॉरी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश दैट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ? उन्होंने कहा या दैट इज ओके, कनेक्शन इज गुड। मैंने कहा इट्स नॉट सो मच अबाउट द कनेक्शन, इंटरनेट और ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इट्स अबाउट द फैक्ट दैट आई एम एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विथ यू इन इंग्लिश। यू नो वेयर आई लर्न दिस इंग्लिश? For most of my life, I was in India. And this is the English that I'm speaking in front of you. So just because I have experience in India, just because I have experience in startups, just because I have experience selling credit cards, does not mean at all कि वो experience valuable नहीं है. And that time, right there, I got another contract for $5,000 above the price that they initially offered me. So that one statement, right? 5,000 Canadian dollars, about 3 lakh Indian rupees, increased my package by 3 lakh Indian rupees, right? Again, don't go with the numbers. 3 lakh might sound very high in Indian context. Canada mein, it's very basic, right? It's less than 1 month of your salary just to give you a margin, right? Uh, इन सब के बाद जो तीसरा फेज है, जो बहुत लोगों की लाइफ में नहीं आता है लकीली, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 सालों में बहुत लोगों की लाइफ में आया है,
there's something called scope creep, जब आपका project बहुत extend हो जाता है and the cost is unbearable or the quality or quantity or something is unbearable, right? You close the project. Because of scope creep, 3 हफ्ते के अंदर वो project बंद हो गया जिसमें मेरे को hire किया गया था and मेरे को bench कर दिया. उसके कुछ टाइम बाद 4 लोग जिनको उन projects के लिए hire किया गया था, to the best of my knowledge, they all got laid off. One of the people who I was very actively working with, that guy was in his last week of probation. उससे डील करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है. एंड आई वुड से कि जब आप अपनी करियर को या अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से अटैच कर लेते हो ना, तो उन दोनों का सेपरेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है. इवन दो आई जस्ट वेंट टू ऑफिस फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, से कॉल इट परफॉर्मेंस, कॉल इट एनीथिंग, राइट? ऑफिशियली तो यही बताया गया था कि यू आर नॉट अ गुड फिट फॉर द टीम, राइट? बट जब आप हर रोज ऑफिस जाते हो और जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो और वो खुश होते हैं ना आपके काम को देख के, आपके काम को वैलिडेशन मिलती है, जब आप लंच पे उन लोगों के साथ बैठते हो, आप उन लोगों के साथ सिर्फ 1 हफ्ते भी बैठ के अगर कनेक्शन बना लेते हो, राइट? बिकॉज दिस हैज हैपेंड विद अ कपल ऑफ माय फ्रेंड, जहाँ पे 1 हफ्ते में उनको ले ऑफ कर दिया गया था, राइट? यार जब आप अगली मॉर्निंग उठते हो ना और जब आपको लगता है कि मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ, बड़ा हर्ट होता है यार. एंड उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बट आई वुड जस्ट सजेस्ट गिव योर सेल्फ टाइम. मैंने भी बढ़िया कुछ दिन वीप किया, बढ़िया कि ओके आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट, मेरे सर पे लोन है, मेरे को चीजें समझ नहीं आ रही है. मैंने डैड के लिए इतनी सारी चीजें प्लान की थी, मैंने मॉम के लिए इतनी सारी चीजें प्लान की थी. मेरे को साड़ी लेनी है, मेरे को फोन लेना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, राइट? भाई, pick yourself up. That's the best thing that you can do, right? Hard times may, if you embrace the pain and you pick yourself up out of the things that are not in your control, that is the, by very definition, makes you an evolved person, makes you a person who can be counted on, because आप अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते हो तो दूसरा आप पे ट्रस्ट करेंगे. गया, करियर फेयर में चला गया 1.5 घंटे दूर, राइट? अगर मुंबई का एग्जांपल लूं या चलिए दिल्ली का एग्जांपल लेता हूं बिकॉज वो ज्यादा लोगों के लिए फेमिलियर होगा. मैं कोर दिल्ली से उठ के चला गया गुड़गांव, एक करियर फेयर था वहां पे. वहां पे जाके बहुत सारे स्टॉल्स थे, 3 जॉब्स भी उठा लाया उसी वक्त, राइट? 2 सेल्स की, सेल्स मेरे को थोड़ा अनएथिकल लगने लग गई थी बाद में आया, तो मैं सेल्स से थोड़ा दूर रहने का ट्राई किया. एंड एक जो जॉब मेरे को उसके लिए इंटरव्यू मिला था, मेरे को जॉब भी नहीं मिली थी, सेल्स तो उन्होंने डायरेक्टली दे दी थी, was high school teacher, believe it or not, of all things, right? Now through and through my college life, मैं लोगों को यहाँ वहाँ पढ़ाता था, but formally पढ़ाना बड़ा अजीब था मेरे लिए. And high school teachers seemed like something that was beneath me. I don't know why. जब मैं क्रेडिट कार्ड्स बेच रहा था ना, तब नहीं लगता था कि दिस इज बीनीथ मी. आई थिंक तब एक स्ट्रगल भी थी कि मेरे को अपने मॉम डैड को बताना था या प्रूव करना था कि मैं ये भी कर सकता हूँ एंड आई विल बी ओके विद इट. बट मेरी आइडेंटिटी से कॉन्फ्लिक्ट करने लग गई थी वो चीज कि दिस सीम्स बीनीथ मी इवन दो दिस इज सच अ रिस्पेक्टेबल जॉब बीइंग अ टीचर, राइट? वेज ऑब्वियसली कम थी, आवर्स बहुत कम थे, सब कुछ कम था. एंड क्योंकि मेरे को हर रोज विंटर्स की सुबह उठ के -10 में 1.5 घंटे की ट्रांजिट पकड़ के जाना पड़ता था दिल्ली से गुड़गांव जितने डिस्टेंस पे, मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता था. एंड अगेन मेरे रिलेशंस अच्छे थे प्रिंसिपल से, मैंने बढ़िया उनसे नेगोशिएट किया. 3 महीने मैंने टीचिंग की. उस 3 महीने में भी जैसे 8 महीने के अक्रॉस 15,000 जॉब्स में अप्लाई किया, इस 3 महीने 3,000 जॉब्स में अप्लाई किया. फाइनली एक इंटरव्यू आया, पहली बार में मैंने क्रैक कर लिया, राइट? सो थैंकफुली नवंबर एंड दिसंबर तो मैं गया लाइक स्कूल. जनवरी में मैंने कहा कि सर मुझसे ना हो पाएगा, आप प्लीज नया टीचर ढूंढ लो, क्योंकि मेरे लिए वो ट्रैवल बहुत मुश्किल हो रहा था, राइट? एंड इट वाज नॉट, मेरे को अगर आप देखोगे ना तो 6 घंटे काम करने के लिए ओवर लाइक 10 आवर्स, 12 आवर्स ट्रैवल करना पड़ता था. और किसी दिन ट्रेन अगर छूट गई, अगली ट्रेन 1 घंटे बाद है, आप स्कूल के लिए भी लेट हो तो आपको वो वेज भी कम मिलेगी, राइट? ट्रैक पे वर्क चल रहा है, आपको ऑल्टरनेट रूट लेना है, 3 घंटे का वन वे हो गया 1.5 घंटे की जगह, राइट? तो बिल्कुल होप्स क्रश हो जाते हैं, होप्स डिमिनिश हो जाते हैं. बट फाइनली मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल गया. उस टाइम पे तो मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी की, सब कुछ किया. 27th of January लास्ट ईयर was the last day when मतलब आई डिड द टीचिंग. एंड 29th को मेरी आईटी कंसल्टेंसी में एज एन एनालिस्ट जॉब लग गई एंड आई वाज वेरी हैप्पी. 4 महीने लगे मेरे को अपने उससे रिकवर होने में, ले ऑफ से. एंड इट टेक्स टाइम, बट इफ यू want to, you can. Just believe in yourself and be secured in your knowledge कि मैं कर सकता हूँ भाई. तो हाँ. Right. I think this was very nice. काफी relatable भी हुआ because at times even in my medical journey there are moments when
काफी टाइम हो जाता है, you feel like already the journey is very long, and in general maybe the returns are not that much, but yeah, it's again a part of life and we all need to try to get something out of it every time we can. So at the end, Hardik, I think it is a great session, and we had a मतलब जितना हमने सोचा था 10-15 मिनट उससे कहीं ज्यादा, we talk naturally, and I hope the subscribers also love it. So एक quickly one line message if you want to give to a younger Hardik, 18-year-old की life में आगे क्या देखने को मिलेगा. Instead of one line, I'll do 30 seconds, okay? I'll हम्म. try, okay? Uh, to my younger self, there's a study in Harvard called Harvard Study for, I think, humans or Harvard Study for adults. उसमें वो लोग थ्रू एंड थ्रू लोगों की लाइफ नापते हैं कि क्या चल रहा है. And what they try to answer questions like is what makes life fulfilling, what makes a person happy and everything. वो study 1938 से आज तक चल रही है, and across the span of over 8-9 decades, their findings are very simple. और उसमें से मैं 2 takeaways अपने younger self को और बाकी सबको देना चाहूंगा. One, आप ज्यादा पैसे कमा के हैप्पी नहीं होगे, हम्म. राइट? इफ यू सी एंड फॉलो लाइफ थ्रू एंड थ्रू, डेथ बेड पे या इवन अर्ली लाइफ में किसी ने ये नहीं बोला कि मैंने ज्यादा पैसे कमाए तो मैं लॉन्ग टर्म में हैप्पी हूँ. दे ऑलवेज टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स. सो नेवर बर्न ब्रिजेस. किसी से कभी भी लड़ो झगड़ो मत, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो. कभी भी किसी को एकदम बुरा वो करके मत जाओ कि अब तो इससे बात ही नहीं करनी है, हम्म. राइट? Always try and maintain relationships because it's hard. Second, people who have the most content and fulfilling life are the people who just show up every day and do the work. It's हम्म. hard to just stay friends for 8 years or 8 decades. It's hard. बट 80 साल के बाद जब आप अपने दोस्त से मिलोगे और उनसे कैचअप करोगे ना, आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो खुशी के आंसू होंगे. हम्म. 50 साल की मैरिज के बाद जब आप अपने वाइफ को या अपने पार्टनर को उतना ही प्यार करने की कोशिश करोगे जितना आप पहले अपने यंगर टीन्स में करते थे, इट विल बी हार्ड, हम्म. बट यू विल फील सिक्योर इन योर रिलेशनशिप. हम्म. Right. शॉर्ट टर्म के गोल्स की वजह से कभी भी लॉन्ग टर्म दाव पे मत लगाओ. ऑलवेज थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म, ऑलवेज थिंक अबाउट सस्टेनेबिलिटी. ट्राई नॉट टू ट्रेड, ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर लाइफ. Right. Amazing. I think that was a very nice conclusive message for all. And thank you so much, Hardik, for giving us your time. And जो भी इस podcast को सुन रहा है, I'm sure they'll get very inspired. Thank you so much. थैंक यू सो मच. नमस्ते.